We'll continue from question number 4. In the last class, we had completed till question number 3. Okay. Now we have done this formula that slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is slope. ये slope का formula था. So based on this, question number 4. What does question number 4 says? क्या find करना है आपको? Slope of the line parallel to AB. Slope of the line parallel to AB. ठीक है, आपको A point दिया हुआ है. A point is -2,4 and B point is 0,6. ये दो पॉइंट्स आपको दिए हैं and they are asking you to find the slope of the line parallel to AB. Okay, हम पहले क्या करेंगे? We have the points A and B. So first we'll find the slope of AB. हम AB का slope find करेंगे. Take this as x1 y1, x2 y2. Okay, and find the slope of AB. Let name it m1. So formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is 6 minus 4 upon 0 minus -2. So 2 upon 2. That is 1. Copy this. So हमने यहाँ पे AB का slope find किया. We got the value as 1. Okay. Now they are asking me find the slope of the line parallel to AB. If two lines are parallel, their slope will be equal. ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला में. जो लाइंस पैरेलल होती है उनका स्लोप इक्वल होता है. दैट मींस अगर AB का स्लोप 1 है तो जो लाइन AB को पैरेलल है उसका स्लोप भी 1 ही होगा. ओके, सो आई विल राइट हियर स्लोप ऑफ द लाइन parallel to AB is also 1. हमने AB का स्लोप फाइंड किया and they are asking me to find the slope of the line parallel to AB. So जो AB को पैरेलल है उसका भी स्लोप सेम ही है. ठीक है. Similarly in the second sub question also वही करना है आपको. You have to find the slope of AB. A और B पॉइंट्स दिए हैं, स्लोप फाइंड करो and then लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना. Slope of the line parallel to AB सेम होगा. ठीक है, स्लोप फाइंड करो. सब क्वेश्चन 2 में भी सेम. What did you get the slope of the second sub question? Tell me in the chat box. Yes, you should get the slope as -4, correct.
you will get the slope as -4. Then you will write the statement slope of the line parallel to AB is also -4. Okay. This was about question number 4. Next, question number 5. Question number 5 में बोला है find the slope of the line. Find the slope of the line perpendicular to AB. Perpendicular to AB. A point is given as 0, -5 and B is given as -2, 4. ठीक है, तो पहले A और B दिया है, तो I will find the slope of A and B first. I'll find the slope of A and B first. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is 9 upon -2. So we are getting the slope m1 as 9 upon -2. Now they want me to find the slope of the line perpendicular to AB. जो AB को perpendicular है, तो perpendicular के लिए what is the formula? Perpendicular, the formula is m1 into m2 equals -1. इसका मतलब क्या है? दो लाइन्स है, एक ये m1 और एक ये m2. पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है. ओके, आपको पहले लाइन का स्लोप ऑलरेडी पता है. यू नो द स्लोप इज 9 upon -2 and you have to find the slope m2, that is the slope of the second line. ओके, समझो अगर एक ये लाइन AB है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, लेट्स से PQ. तो AB का स्लोप आपको पता है 9 upon -2 है, तो PQ का स्लोप कैसे मिलेगा आपको? दैट इज m2. वो आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा. ओके, सो m2 इज -1 into -2 upon 9. So m2 is 2 upon 9. Write the statement slope of the line perpendicular to AB is 2 upon 9. Similarly, you can solve the sub question 2 also. पहले slope find करना है, फिर ये formula use करना है, m1 into m2 is -1. Do it fast, I'll give you 2 minutes. Done. What is the answer for the second sub question? Same thing. First, you will find the slope of AB and then use this formula. M1 into M2 is -1. तो आपको M2 मिलेगा. क्या आंसर मिल रहा है? करेक्ट, सांची, रिश्ता करेक्ट. Yes, others, tell me the answer. What is the answer? Correct, Shlo, Vishan, Abbas. Correct. Okay, I hope all of you have completed question number 5 now. We can start with question number 6.
चलो क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। उन्होंने आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दी है क्वेश्चन में। व्हाट दे आर सेइंग इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,2 एंड -3,1, जो लाइन इन ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू एंड 4,8। सो सी, ये जो फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, दे आर सेइंग दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है? इक्वल है। मतलब समझो अगर ये लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है तो दे विल बी इक्वल, करेक्ट। तो आप सम को दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप या तो पहले अलग से m1 का स्लोप फाइंड करो और उसे m2 में यूज करो, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो m1 इक्वल्स m2। आपको पता है m1 इक्वल्स m2, ठीक है। तो m1 के लिए ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, ठीक है। तो m1 का फॉर्मूला क्या होगा? m1 के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स, यहाँ पे फॉर्मूला वापस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। सो m1 के लिए यूज दिस कोऑर्डिनेट्स एंड पुट द वैल्यूज हियर। y2 क्या है? -1, y1 है 2 अपॉन x2 इज -3, x1 इज 0 इक्वल्स, सेकेंड ये वाली लाइन है m2 के लिए, तो उसको यहाँ पे पुट करो। तो y2 क्या है? a माइनस y1 क्या है? 5 अपॉन x2 क्या है? 4 माइनस x1 क्या है? -1। इसको सॉल्व करो। -3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। दिस 5 विल गो हियर, इट विल बिकम 5। So you will get a as, सिंपल क्वेश्चन था ये। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो दे हैव गिवन यू टू कोऑर्डिनेट्स ईच फॉर द लाइंस। कॉपी इट फास्ट, थोड़ा डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या दिया है 7th में? लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -2 एंड 2, -3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन पासिंग फ्रॉम a, 5 एंड 2, -1। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। इसी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। तो दो लाइंस है, ठीक है, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर? m1 इंटू m2 इज -1, ठीक है। तो ये है आपकी लाइन, ये ग्रीन में जो जिसका स्लोप को हम m1 लेंगे, और ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पे, इसके स्लोप को हम क्या लेंगे? m2, ठीक है। तो फाइंड करो।
m2 की जगह पे इसका फॉर्मूला और m1 की जगह पे इस लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स -1। नाम अच्छे से देना, x2 y2 x1 y1, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसे नहीं भी लिखो x2 y2, आप ओरली भी कर सकते हो, बट जिनको कंफ्यूजन होता है दे शुड राइट इट, वो बेटर होता है। -3 माइनस -2 अपॉन 2 -4 एंड m2 के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 x1। अब वो डिपेंड भी करता है आप x1 y1 क्या ले रहे हो। अगर आपने ऊपर वाले को x2 y2 लिया है, नीचे वाले को x1 y1, तो आपको उल्टा आएगा, बट आंसर फाइनली सेम ही आएगा। ये आया सबको, यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक कॉमन होगा। इसके आगे बता दो क्या करना है। नाउ दिस 6 and 6 विल कैंसिल, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 और यहाँ पे भी 1 है, दिस विल बिकम +1। 2 माइनस a इक्वल्स -1। सो 1 इक्वल्स, ये 2 माइनस a जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इक्वल्स -2 प्लस a। अब इस -2 को यहाँ भेज दो तो ये +2 हो जाएगा, so you will get finally a as 3। परपेंडिकुलर के लिए अगर मैंने ये स्ट्रेट बनाया तो ये भी स्ट्रेट बनी, अगर मैंने यही वाली लाइन को ऐसा बनाया तो ये वाली लाइन भी ऐसे बनेगी करस्पॉन्डिंगली, दे शुड बी परपेंडिकुलर। तो डायग्राम कैसे भी बन सकते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 डन। वी कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 8। See, they have given us three vertices of a triangle। ट्राइंगल के वर्टाइसेस मुझे दिए, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है मुझे? What do I have to prove here? That the triangle formed by these vertices is a right angle triangle। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो समझो ये कुछ ट्राइंगल ऐसा मैं बना देता हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। तो दिस इज A, B और C। अब मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है?
राइट एंगल ट्रायंगल में खास क्या होता है? 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब 90 डिग्री में कौन से फॉर्मूला से प्रूव कर सकता हूँ? यस, 90 डिग्रीज का मतलब होता है परपेंडिकुलर होते हैं साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, समझो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें दो साइड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। तो हम अगर मैंने इन दोनों साइड्स का स्लोप ढूंढ लिया और उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? जो साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है? -1 होता है। दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का रिलेशन -1 होता है, ठीक है। अब ये दो साइड्स कौन सी है यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता। कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर है मुझे नहीं पता। मतलब ट्राइंगल देखो, ऐसा भी हो सकता है ABC, ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है ACB, कैसा भी हो सकता है, A भी 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल थ्री साइड्स AB BC AC, तीनों का स्लोप फाइंड करो, स्टार्टिंग विद AB BC AC। ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC। Find the slope of all three sides. आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जब भी आप दो पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 लेते हैं तो आप जनरली फर्स्ट वाले को x1 y1 और सेकंड को x2 y2 लेते हैं, राइट? ये आदत होती है। अगर आप उल्टा लो ना तो इसके लिए आपके लिए और इजी हो जाता है। देखो, x2 y2 और x1 y1, इससे क्या होता है, 4 -4 -2 -4, मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, समझ रहे हैं? सेकेंड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, वो उल्टा नहीं देखना पड़ता आपको। जनरली हमें उल्टा देखना पड़ता है ना, 4 माइनस ये करूँ फिर ये। अगर आप पहले वाले को x2 y2 ले लो तो आपको रीड करने में आसान होता है, फास्ट सम सॉल्व होता है, ओके। तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको जमे तो। अच्छा, BC का स्लोप मुझे क्या मिलेगा, 6 -4 तो 2/14 1/7। देखो, AC के स्लोप मैं बताता हूँ, इसको अगर x2 y2 लेते हैं और इसे अगर x1 y1 लेते हैं क्या आएगा, y2 मतलब -2 -6 4 -10, तो -6 नहीं, कुछ तो गलत किया है। हाँ हाँ, -8 आएगा ये अपॉन -6, सो दैट इज 4/3, माइनस माइनस विल कैंसिल। ये तीनों स्लोप आए हैं मुझे, सबको सेम आया। देखो, साइन का मिस्टेक मत करना, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इफ टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, ओके। तो ऐसे कौन से दो स्लोप आपको दिख रहे हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? AB का स्लोप और AC का स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ओके। अगर वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उनको मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AC मतलब 3/-4 इंटू 4/3। इससे क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, आपका आंसर आया -1। आंसर -1 आया, -1 ही आना चाहिए। दैट मीन्स AB इज परपेंडिकुलर टू AC। समझा? अगर इसके स्लोप को मैं m1 लूं और इसके स्लोप को लेट्स से m2, तो इन दोनों के स्लोप को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द आंसर इज -1।
ऐसे यहाँ पे लिख दो इसके पहले m1 into m2 is -1, so therefore AB is perpendicular to AC। पक्का समझा? हमने तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड किया, दो साइड्स ऐसी मिली जिनके स्लोप को मल्टीप्लाई करके माइनस बना रहा है, मतलब डेफिनेटली वही दो साइड्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला तो नहीं है कि ड्रॉ द डायग्राम, बट अगर आप एक्स्ट्रा के लिए सोच सकते हो कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? डी 90 डिग्री होगा। ये दो साइड्स परपेंडिकुलर है ना, these two sides are perpendicular। कॉमन अल्फाबेट कौन सा है इसमें? ए, तो ए विल बी 90 डिग्रीज, तो ये ऐसा लिखेंगे ए बी और ए सी, ए कॉमन अल्फाबेट है ना, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। दिस इज हाउ द ट्राइंगल विल बी मेड, अगर पूछा तो। ठीक है, पूछ सकते हैं जस्ट। Any doubts in this question? नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9। Without using the distance formula, show that the points A, B, C, D are vertices of a parallelogram। ठीक है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपने 9th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, और वहां पे आपने सीखा है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन प्रूव दैट अ फिगर इज अ पैरेललोग्राम। आप ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करते थे और डिस्टेंस इक्वल होता है तो इट इज अ पैरेललोग्राम। बट वैसा यहाँ पे नहीं करना है, उन्होंने बोला है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम होगा। अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका भी m1 होगा। ठीक है, अगर BC का स्लोप मैं m2 दूं तो इसका भी स्लोप m2 होगा। ओके, पैरेलल का मतलब ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम है। तो आप चारों साइड्स का स्लोप फाइंड करो, AB, BC, CD और AD। फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल फोर साइड्स एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम मिलेगा। तो यू विल कंक्लूड दैट, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है कंक्लूजन। पहले आप चारों साइड्स का स्लोप फाइंड करो। आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, आप अज्यूम नहीं कर सकते कि वो पैरेललोग्राम है। हाँ हाँ ठीक है, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। Sir, why all four sides? All four sides because you don't know whether it is a parallelogram or not. You have to prove it is a parallelogram. So when you will find the slope of these two sides, आपको पता चलेगा कि हाँ ये दो साइड्स पैरेलल है। सिर्फ दो साइड से भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट टू साइड्स नहीं की तो इट कैन बी अ ट्रेपेजियम आल्सो। ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है, दोनों साइड जब पैरेलल होगी तो ही इट इज अ पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। Okay, sir. You have to prove here that it is a parallelogram. So you have to show that how the slopes of opposite sides are equal. स्लोप सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x1 y1 x2 y2 लो और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करो, दैट्स इट।
ए बी का स्लोप 1 मिल रहा है, बीसी का स्लोप क्या मिल रहा है, और एडी का भी 1/3 मिल रहा है। तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स स्लोप ऑफ ए बी। Therefore, opposite sides are parallel. Hence, ABCD is a parallelogram. समझ में आया ना क्वेश्चन? Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. So quadrilateral मतलब any four-sided figure. You don't know what type of figure it is, but it's a quadrilateral, four-sided figure. Okay. So कोई particular shape नहीं है. So first point is -2, 4. You will need to draw the diagram here. 4, 8, 10, 7, and 11, -5. Let's say I name it as A, B, C, D. This is the quadrilateral given. Now, show that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of these sides. ये जो 4 साइड्स दिख रही है यहाँ पे AB, BC, CD, AD, इनके मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइंट करना है. इनके मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो एक और क्वाड्रिलैटरल बनेगा. ये एक और, लेट्स से इट इज PQRS. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पहले आपके पास PQRS के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. ठीक है, तो PQRS के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से पहले आपको PQRS चारों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, फाइंड करो. मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2. तो पहले आप मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करो, मिड पॉइंट ऑफ BC. स्लोप मत फाइंड कर देना, मिड पॉइंट फाइंड करना है AB का. ठीक है, स्लोप मत कर देना. मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ AD. So let's say अगर मैंने इसको x1 y1 x2 y2 लिया, तो क्या मिलेगा? x1 + x2/2 and y1 y2/2.
मिल रहा है ए बी का, ए बी क्या मिला 1,12/2 is 6. तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 1,6, मतलब ये पी का कोऑर्डिनेट है 1,6. ऐसे करके आपको सबका कोऑर्डिनेट ढूंढना है. पी क्यू आर एस. फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस.
क्या मिला आपको मिड पॉइंट? बीसी का मिड पॉइंट क्या मिला? 7,7.5। सीडी का -1 है कि 1 है? 1, ठीक है। और एडी का मिड पॉइंट? तो उल्टा होगा, एक बार ठीक से देखो क्या है। 10.5 ही आएगा ना, देखो ना। 11 + 10 x की वैल्यू आनी चाहिए। अब ये आपको मिड पॉइंट्स मिले हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि PQRS पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको सारे साइड्स के स्लोप पता होना चाहिए। तो अब आप स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ PS। आएगा, आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 4 मार्क के लिए आ सकता है ऐसा। फाइंड स्लोप। आप ऑब्जर्व करोगे आपको PQ और R क्या मिल रहा है आपको? PQ का स्लोप क्या मिल रहा है? 1/4। 1.5/6 मिला है, तो ये 15/60 बनेगा। 15 1 जा 15 4 जा, you will get 1/4. What is the slope of QR you are getting? -13/7। करो, सब फाइंड करो।
आर एस का स्लोप 1/4 मिल रहा है, आर एस का स्लोप भी 1/4। चलेगा, बट क्या होता है पता है, समझो आपने पहले वाले का रखा 1.5/6, ओके, और दूसरे वाले का आपको डेसिमल में नहीं आया, आपको आंसर आया 1/4, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों अलग है सॉल्व नहीं करने पे, तो गलती हो सकती है यहाँ पे। हाँ, वो इंसिडेंटली सेम आया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कंडीशन। ये आंसर्स आने चाहिए आपको। फिर आप लिखोगे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स स्लोप ऑफ आर एस, क्यू आर इक्वल्स स्लोप ऑफ पी एस, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ हाँ, देयरफॉर चलो पे अटेंशन। सी क्वेश्चन नंबर 11 में आपको नंबर्स नहीं दिए है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ओके, सो यू कैन स्किप क्वेश्चन नंबर 11। कोलिनियर के सम्स आगे भी आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 19 भी कोलिनियर का है, so that time we will understand what is the concept of collinear. Now we can come to question number 12. Question number 12 is a very easy sum. I want you to do it on your own. खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12। खुद से करो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पॉइंट्स दिए आपको और उनका स्लोप भी दे दिया है। सिंपल है, स्लोप भी दे दिया है, दोनों पॉइंट्स भी पता है, इससे फॉर्मूला में पुट करो। Solve it.
आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। See, now in this question, क्या दिया है हमें? Pay attention carefully. It is given that the side AB of an equilateral triangle ABC. ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. अगर ये इक्विलैटरल है तो all angles will be 60 degrees. ठीक है, पहली चीज तो ये. आगे दिया है the side AB of an equilateral triangle is parallel to x axis. ये मैंने एरोस बनाया है यहाँ पे. AB is parallel to x axis. ओके, ठीक है. फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स. मतलब हमें क्या करना है? सारे साइड्स का स्लोप फाइंड करना है. स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ बी सी. ये तीनों हमें फाइंड करना है. ठीक है.
अब सबसे पहले व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? मैंने आपको फॉर्मूलाज में लिखवाया, पेज टर्न करो देखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? जीरो है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो। अगर एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है तो जो लाइन उसे पैरेलल है उसका भी स्लोप जीरो होगा। ओके, तो इसका मतलब ए बी का भी स्लोप जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप इज जीरो और ब्रैकेट में लिखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Sir, can you repeat means how to find AC and BC again? I didn't explain AC and BC. So, We explained AB till now. सी, तो AB का स्लोप हमें मिल गया। ओके, AB का स्लोप हमें मिल गया। AB का स्लोप जीरो है बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब स्लोप ऑफ AC, हमने एक चीज देखा है कि जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए। एंगल शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ये एंटी क्लॉकवाइज में ही 60 डिग्रीज बन रहा है। तो जो AC का स्लोप होगा इट विल बी tan 60 डिग्रीज। ये 60 डिग्री इंक्लिनेशन है ना, ये 60 डिग्रीज नथिंग बट इंक्लिनेशन। तो ये tan 60 हुआ। व्हाट इज tan 60? √3। दिस इज योर आंसर। ओके, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से चेक करते हैं। ओके, अब ये लाइन भी एक्स एक्सिस में एक्सटेंड कर सकता हूं मैं इसको, तो ये सेम ही होगा एंगल 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ना, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। अब ये थीटा है, ये जो एंगल होता है मतलब थीटा होता है, तो आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ओके, नाउ लास्ट इज BC। अब BC का जो स्लोप है यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, जब ऐसा होता है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, तो आपको अपने आंसर को नेगेटिव कर देना है। ओके, आंसर को नेगेटिव बना देना है। तो यहाँ पे आपका ये tan -60 होगा, तो इसका आंसर लिख दो -√3। या आप डायरेक्टली -√3 भी लिख सकते हो, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 30 नहीं ले सकते, नहीं। ये एक्चुअल में एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इसका एंगल देखोगे तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा होगा, तो इट शुड बी 120। तो आपको tan 120 की वैल्यू लिखनी होती है। ओके, और tan 120 की वैल्यू होती है -√3। ओके, बट आपको 120 की वैल्यूज मिलेगी भी नहीं पेपर में और आपको लर्न भी नहीं करना है। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर, इट इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव ऑफ 60 वैसे। क्या होगा तो, बट वो कुछ भी आ सकता है ना, जैसे भी tan 45 आया और tan -45 आया तो आंसर नेगेटिव आएगा वैसे। नो, नथिंग। एंटी क्लॉकवाइज हमने स्टार्टिंग में जब फॉर्मूलाज करवाया था ना, तब मैंने बताया था कि आप किसी भी, ये सब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, आप किसी भी लाइन का जब स्लोप निकाल रहे हो ना, तो आपको उसका एंगल एक्स एक्सिस से देखना होता है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ओके समझो अगर ये लाइन ऐसी है तो आप इसका स्लोप ऐसे नहीं देख सकते, ये एंगल, ये इसका थीटा नहीं हो सकता, इसका थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस विल बी द थीटा। कोई भी लाइन का, किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 में दे हैव ड्रॉन अ स्क्वायर, y axis, x axis, and we have a square here. A, B, C, D. All angles are 90 degrees because it is a square. So all angles are 90 degrees. एक और चीज है, यहाँ पे फिर से एरो बनाया है, means it is parallel to each other. और आपको सारे साइड्स का स्लोप ढूंढना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो अगेन दिस ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, तो आप लिख दो स्लोप ऑफ ए बी 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर अब अगर ए बी का स्लोप 0 है, क्या ए बी और सी डी पैरेलल है? स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो सी डी भी पैरेलल ही है, ठीक है। तो आप सी डी का स्लोप भी लिख दो यहाँ पे, स्लोप ऑफ सी डी विल ऑल्सो बी 0। आप यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख सकते हो या पैरेलल टू ए बी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब एडी, एडी क्या है, एंगल क्या बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में ही है एंगल, ठीक है, 90 डिग्रीज बना रहा है, मींस इट विल बी tan 90 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड लिख दो पूरा। No need to write 1/0. And same thing will happen with BC also, because BC or AD parallel. So again, tan 90 not defined. Copy this much. There is one more part here. We have to find diagonals also. Now we have to find the slope of the diagonals also. Okay, so slope of diagonal AC, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ AC को. What will this angle be? 45 degrees. So means slope will be tan 45. That is one.
एंड देन BD के लिए ये क्लॉकवाइज में आ जाएगा 45 डिग्री, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। Done? Now, question number 16. 15 हम बाद में करेंगे, 16 थोड़ा सिमिलर है इसके जैसे, तो पहले 16 करते हैं। अच्छा, थोड़ा स्पेस लीव कर दो, बट वो बड़ा क्वेश्चन है, तो लीव वन पेज एट फर्स्ट। See, question number 16 में we have a rectangle ABCD. Okay, and the slope of the side BC is given as 2/3. Okay, they are asking you to find the slope of AB. AB का slope क्या होगा? ये BC और AB परपेंडिकुलर है, समझो मैंने BC के slope को M1 लिया. Let the slope of BC be M1 and slope of AB be M2. Now AB is perpendicular to BC. इसका मतलब इनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा? -1 होगा, तो मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। क्या मिला आंसर? -3/2. So slope of AB is -3/2. और AD का स्लोप क्या होगा? सेम ही होगा, बिकॉज ये दो लाइंस पैरेलल होगी, रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो स्लोप ऑफ AD इक्वल स्लोप ऑफ BC. So slope of AD is 2/3. ओके, डन। ये लाइंस पैरेलल है ना, रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ रेक्टेंगल. We'll stop here today.